ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಮ ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀನು ನಮಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಿಸು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಈ ಆರಾಧನೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನೇ ಘನತೆ ಹೊಂದಿಕೋ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಸ್ತಲೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀನೇ ಯಾರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 47ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 47, Psalm 47 ವಿಲ್ ರೀಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವಲಿ. भजन संहिता 47वां अध्याय हम उत्तर प्रत्युत्तर के लिए पढ़ेंगे. है देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है. वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है. वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता है और अन्य जाति को हमारे पाँव के नीचे कर देता है. वो हमारे लिए उत्तम बाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है. परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है. परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है. समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ. परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है. परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है. राज्य राज्य के रईस इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी के ढाले परमेश्वर के वश में हैं. वह तो शिरोमणि है. पढ़े हुए इन वचनों को परमेश्वर आशीषित करे, आमेन. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. हाय हम सब अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना के पश्चात हम सारे लोग प्रभु की प्रार्थना कहेंगे. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಡೆಸಿದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತು ಬರುವ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಸದಾಕಾಲ ಘನತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ತಲುಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, ರೋಗಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀಡು. ದೇವರೇ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಕರ್ತನೆ, ಇವರಿಗೆ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಹಾಕು. ಕರ್ತನೆ, ಇವರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಕರ್ತನೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು
ದೇವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಂಟುಕೊಂಡಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ಯಾವ ಥರದ ದುಃಖ ಇರಲಾರದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವರು ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ಚಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸು. ಕರ್ತನೆ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ತುತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಘನತೆ, ಮಾನ, ಮಹಿಮೆ, ಗೌರವ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪ್ರಶಂಸೆಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕ ನೆರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗ, ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 55ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 55ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಚನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್, ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ Isaiah chapter 55 verses 2 and 3. Isaiah 55 2 and 3. यशायाह नबी द्वारा लिखित किताब 55वां अध्याय 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे. यशायाह नबी द्वारा लिखित किताब 55वां अध्याय 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे. इस समय मैं आप सभी के लिए मैं पढ़ता हूँ. यशायाह उसका 55वां अध्याय 2 और 3 वचन. Isaiah chapter 55 verses 2 and 3. Why do you spend for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me, and eat what is good, and delight yourself in abundance. Incline your ear and come to me. Listen that you may live, and I will make an everlasting covenant with you, according to the faithful mercies shown to David. May the good God add his blessings upon the reading of the portion. We'll turn to the New Testament portion. हम नए नियम के भाग इस समय पढ़ेंगे. नए नियम में प्रेरितों का काम, उसका 10वां अध्याय 9वां वचन. केवल एक वचन हम पढ़ेंगे. प्रेरितों का काम, उसका 10वां अध्याय 9वां वचन. We'll read from the New Testament, the Acts of Apostles, chapter 10, verse 9. Acts 10, verse 9. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ वचन. दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस कोटे पर प्रार्थना करने चढ़ा. On the next day, as they were on their way and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. May the Lord add his blessings upon the reading of the portion. परमेश्वर इन पढ़े हुए भागों को आशीषित करें. आइए इस समय हम सारे लोग परम प्रधान परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद करेंगे और उसके वचनों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रयत्न करेंगे. उसके वचनों के आधार पर हम अपने आप को स्थापित करें. एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे. क्योंकि प्रभु हम आपके सानिध्य में, आपके पवित्र उपस्थिति में आए हैं, विनती करते हैं प्रभु कि आपके वचनों के द्वारा आप हम सभी से बातें करें और पिता आपके वचन की ज्ञात हमें कराएं, ताकि हम सारे लोग इन वचनों को संपूर्ण रीति से समझ सकें और केवल इन वचनों को नहीं बल्कि हम इन वचनों के ज़रिए पिता परमेश्वर परम प्रधान की आवाज़ को, उसकी सोच को और उसकी
चाहत को समझ सके, सुन सके और उसी के लिए हमारे जीवनों को व्यतीत करने में हम सामर्थ्य पा सके, ऐसी आशीष करें। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं, ಆಮೇನ್। ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ನಾವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಅದೇನಂತಂದರೆ, ನಾವು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು। ನಾವು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೇಜಾರಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾಕಂದರೆ 1 ದಿನ ಅಲ್ಲ, 2 ದಿನ ಅಲ್ಲ, 1 ವಾರ ಅಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 45, ಈಗ 42 ದಿನ, 40 ದಿನ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೂ 14 ದಿನ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 54 ದಿನ, 55 ದಿನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ। ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ। ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಲಾರದೆ ಆತನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸ್ತಿರಬಹುದು। ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ನೀವು ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೂ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಈ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ। ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತನು, ಆತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವದಾನಗೋಸ್ಕರ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು। ಈ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸುವುದೇನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆತನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ परमेश्वर चाहता है कि हम सारे लोग उसकी आवाज़, उसकी वाणी, उसके शब्दों को सुने या उसको सुने। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा यशाया का किताब और नए नियम में प्रेरितों के काम, इन दोनों भागों में इस तरह परमेश्वर की वाणी हम समझ पाते हैं या परमेश्वर की बात हम समझ पाते हैं कि वो चाहता है कि हम उसे सुने और उसके साथ हमारे संबंधों को स्थापित करने में सक्षम रहे। हम सारे लोग चाहते तो हैं कि हम मन से चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को परमेश्वर की सुने, और हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हम सुन नहीं पाते, या हम अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पाते नहीं हैं। और फिर कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है या प्रार्थना करते करते उग गए, तो वे लोग, ऐसा समय आता है उनके जीवन में कि वे लोग परमेश्वर की आराधना करने या परमेश्वर के पास जाने या परमेश्वर की सुनने की उनमें क्षमता नहीं होता, या वे लोग छोड़ देते हैं, वे लोग परमेश्वर को ठुकरा देते हैं। प्रियो, यदि हम भजन संहिता 63 अध्याय 1 वचन अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर दाऊद राजा इस तरह कहता है कि मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मैं तुझे
ढूंढ रहा हूं या तुझे खोज रहा हूं। और कहता है कि मेरा आत्मा, माई सोल थर्स्ट फॉर यू, तेरे लिए प्यासा है। प्रियो, दाऊद राजा का इस बात से या इन शब्दों से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी आत्माएं जो है वो प्यासी है और परमेश्वर जीवन का पानी है। God is the water of life, and our soul craves for that water because our soul is thirsty. हमारा आत्मा प्यासी है। और जब परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे जीवन में यदि है, परमेश्वर की प्रसन्नता, हम कहते हैं कि परमेश्वर की प्रसन्नता यदि हमारे जीवन में है तो निश्चित ये जान लो कि हमारी आत्मा तृप्त होती रहेगी। अगर नहीं है तो हम प्यासे हमेशा रहेंगे, तरसते रहेंगे उस पानी के लिए। प्रियो, अगर परमेश्वर की आवाज को जानना है तो कुछ बातें हमें ध्यानपूर्वक समझने की प्रयत्न करना होगा। पहली बात, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಇರಬೇಕು। ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ that God still speaks। ये बात हमें अच्छी रीति से जानना है या इसके ऊपर संपूर्ण भरोसा करना है कि प्रभु हमसे बात करता है आज भी। यदि हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान दें तो वहाँ पर जो पढ़ा हुआ भाग है पुराने नियम में, यशायाह 55वां अध्याय 2 और 3 वचन में, विशेषकर 3 वचन में, वहाँ पर प्रभु इस तरह कहता है कि सुन, तेरे कान को मेरे ओर लगा और मेरे पास आ। सुन, तेरे कान को मेरे ओर लगा और मेरे पास आ। और ये कहता है कि जो अच्छा है वो तू खा, यानी कि परमेश्वर के वचनों को तू ग्रहण कर, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೋ। ನೀನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಜೀವಿಸುವುದು। If you incline your ear and come to him, then your soul may live. ಯೆಶಾಯನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ। ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರನೇ, ದೇವರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತರಾಗಿರ್ತೇವೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು। ಅದೇನಂತಂದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ। ಗಾಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್, ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್। ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯೆರೆಮೀಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಆಲ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಜುಡಾ ಹೂ ಎಂಟರ್ ದೀಸ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಲಾರ್ಡ್। ದೇವ ಜನರೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ। ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆತನ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 verse 7 it says, he who has an ear let him hear what the Spirit says to the church। वे जिनके पास कान है वे सुन ले, जो परमेश्वर की आत्मा कलीसियाओं को कहती है। यानी कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए परमेश्वर हमसे कहता है कि उसकी आवाज़ हम सुने। अब परमेश्वर जब ये बात अपने वचनों में कहा है कि सुनो, तो ये 1 बार 2 बार या 5-10 बार नहीं कहा। अगर हम पूरे परमेश्वर के वचनों को हम पढ़े, पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ें, तो लगभग 300 बार, ऑलमोस्ट 300 टाइम्स
And God calls us to listen to Him. परमेश्वर उसकी सुनने के लिए हमें बुलाता है। और आज यदि आप फिर भी आपके अंदर कोई संशय है, कोई डाउट है कि परमेश्वर किस तरह बात करता है या मुझसे क्या वो बात करेगा, ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಈ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದೇ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಎವರ್ ಪ್ರೇಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಿತಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ? ದಟ್ ಈಸ್ one of the way to understand that God speaks. And further, have I read the Bible and found exactly the answer I needed as though it were written just for me? ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, तो जो समस्या मेरे या मैं जिन समस्याओं के भीतर से गुजर रहा हूँ या जो तकलीफ़ें मुझे हो रही है, उन तकलीफ़ों को या उन समस्याओं को या उन बातों को, जो वचनों को मैं पढ़ रहा हूँ, उन वचनों से उन बातों का समाधान मुझे मिल रहा है, उन बातों का उत्तर क्या मुझे मिल रहा है? यदि मिल रहा है तो समझ ले कि परमेश्वर तुमसे उन वचनों के ज़रिए बातें कर रहा है. या हम कोई संदेश अगर सुनते हैं, कोई पासबान बात करता है, इफ़ आई हियर एनी सर्मन, और उस संदेश सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए था या ये मेरे समस्याओं को सुलझाने के लिए ये उत्तर था. यदि ऐसा लगता है तो समझ ले कि परमेश्वर आपको वचनों के ज़रिए, संदेश के ज़रिए बात कर रहा है. यदि आप चलते चलते या प्रार्थना करते करते यदि आपके मन में ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर के तुम निकट हो या उसका उपस्थिति का महसूस होता हो, तो समझ ले कि परमेश्वर आपकी सुनने के लिए तैयार है या आपसे कहने के लिए तैयार है. और अक्सर ऐसे भी होता है, आपने आजमाया या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने आजमाया. यदि मुझे किसी से बात करनी होती है, बहुत दिनों तक अगर मैं किसी से बात नहीं किया हो या किसी व्यक्ति को मैं मन से अगर याद कर रहा हूँ, फिर अचानक से ऐसा होता है कि वो व्यक्ति हमें फ़ोन करता है, वो व्यक्ति हमसे बातें करता है या उसका संदेश हमें मिलता है. इट्स अनदर वे. God wants us to know that He is hearing and is speaking. हमारी मन की चाहत को वो समझता है और प्रत्युत्तर देता है. और कभी कभार हम परमेश्वर की आराधना करते समय कुछ गीतों के ज़रिए हमारी आत्माओं को हम उठता हुआ पाते हैं. हम अपने आप में संतुष्ट हो जाते, तृप्त हो जाते हैं. That's another way. God speaks. God is speaking to His people. परमेश्वर अपने लोगों को बात करने का एक और तरीका है. प्रियो, परमेश्वर सभी से वो आज भी बात करता है. He speaks to each one of us. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ದಿನಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆತನ ಶಬ್ದವನ್ನು
ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರುವಂಥ ವಚನ, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪೇತ್ರನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮನೆಯ रूफ छत के ऊपर वो गए और प्रार्थना करने लगे. When Peter heard from God in Acts 10, he went up on the housetop about the 6th hour to pray. In other words, he sought God in silence. दूसरे शब्दों में इस तरह है कि परमेश्वर के सम्मुख में अगर परमेश्वर की सुननी है, परमेश्वर की आवाज़ को महसूस करना है या परमेश्वर को महसूस करना है, तो प्रथम कर्तव्य हमारा ये होना चाहिए कि हम उसके समक्षता में शांति से हमें रहना है, या हम पूर्ण शांति से, पूर्ण रीति से हम उसके समक्षता में शांत होकर बैठना है. और उस समय प्रभु परमेश्वर जो बातें हमें डालता है या जो बातें का अनुभव हम करने के लिए या करते हैं, जो बातों को हम समझते हैं उस समय, तो मान लीजिए कि वहाँ उन बातों से या उन शब्दों से परमेश्वर तुमसे कुछ कह रहा है. परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को सुनना है. तो एक लेखिका इस तरह या एक व्यक्ति इस तरह लिखता है अपनी किताब में, कहता है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, फॉर द मैन और वुमेन हु हैज़ कम टू नो एंड लव द लॉर्ड इन द डेप्थ्स ऑफ सच इंटीमेसी, द टाइम्स ऑफ सॉलिट्यूड आर मोस्ट प्रेशियस इन आवर लाइफ. जो परमेश्वर से बहुत ही करीब है या परमेश्वर को बहुत चाहते हैं, वे लोग जब एकांत में बैठते हैं तो वे लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं या उन्हें परमेश्वर की वाणी समझ में आती है. और जो परम प्रधान परमेश्वर में जो व्यक्ति नलीन हो जाता है, संपूर्ण रीति से शांत एकांत बैठकर उसके अंदर नलीन हो जाता है, तब वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने प्रारंभ करता है. भजन संहिताकार इस तरह कहता है, Psalm 46:10 it says, "Be still and know that I am God. Be still and know that I am God." शांत रहे, एकांत रहे और सुन कि मैं ही परम प्रधान परमेश्वर हूँ. Be still and you will know that I am God. अगर हम इसकी दूसरे शब्दों में देखें तो परमेश्वर कहता है कि शांत रहे और तू जानेगा कि मैं परमेश्वर हूँ. और परमेश्वर की आवाज़ को और सुनना है, या और एक तरीका इस तरह है कि अपने आप को पूर्ण रीति से उसके चरणों में समर्पित करना. चूज टू सरेंडर योर सेल्फ कंप्लीटली. उदाहरण के लिए हम सारे लोग कैसे करते हैं, हम परमेश्वर की सुनते तो हैं, परमेश्वर के वचनों को जानने की प्रयत्न करते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन हम पूर्ण रीति से समर्पण नहीं करते. जब हम पूर्ण रीति से समर्पण करेंगे, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಸ್ತಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಈಗ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನೆ ಆಯಿತು, ಮೊನ್ನೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ವಾಹನ ಹೋಯ್ತಂತಂದರೆ
ಅದರ ನೀರು ಕೆಸರು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರೋಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಸರು ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಿಡಿದು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಭಾಳ ಬೇಜಾರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬೇಜಾರಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ अंधेरे में वो जा रहा है, रास्ते में लाइट नहीं है, उसके बाजू से ही एक तेज वाहन गुजरती है और जैसे वाहन निकला नीचे रोड के ऊपर बारिश के पानी से जमा हुआ पानी या कीचड़ उसके वस्त्र पर उड़ता है। तो उस अंधेरे में वो केवल ऐसा झटक कर सोचता है कि ठीक है, मुंह पे तो नहीं लगा, थोड़ा इधर उधर उसको, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि किधर किधर लगा है, उसे जस्ट सामने जो दिखा पूछ लिया, निकल गया। और वही व्यक्ति थोड़ा आगे जाता है और वहाँ पर रोड के उस लाइट में या स्ट्रीट लाइट में जब वो अपने आप को देखता है तभी वो समझ जाता है कि अरे, या महसूस करता है कि मैं पूरी तरह, मेरा कपड़े पूरी तरह गंदा हो गया है, इसे ज़रूरी है बदले। तो वो फिर वापस अपने घर की ओर लौटता है ताकि उसके वस्त्रों को बदले, उसके कपड़ों को बदले। ऐसे ही होता है जब हम परमेश्वर के समक्षता में अपने आप को अर्पण करते हैं। When we choose to surrender ourselves to God, that means we put ourselves in His light. हम उसके उजियाले में अपने आप को रखते हैं और तब मेरे हर एक बात, मेरे हर एक पाप, मेरे हर एक विषय, मैं जैसे जैसे परमेश्वर के करीब अपने आप को रखता हूँ, उस सारी चीज़ों को परमेश्वर दिखाने लगता है या मैं देखने लगता हूँ। और देखने के बाद मैं उसे साफ करने की प्रयत्न करता हूँ, या परमेश्वर की लहू से मैं उस गंदगी को, मेरे जो अंतरात्मा पे लगा हुआ है, उस गंदगी को मैं धोने के लिए उससे निवेदन करता हूँ। अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे अंदर गंदगी है जो परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है, और परमेश्वर नहीं चाहता है, या परमेश्वर के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, यदि मुझे उसकी समझ ही नहीं है, तो मैं किस तरह मैं कहूँगा, किस तरह परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मुझे साफ कर। मैं अपने दृष्टि में, अपने आप में मैं अच्छा ही रहूँगा, और अंत में क्या होगा, मेरा दुर्दशा होगा जब वो न्याय करने आएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसके निकट रहें। वी हैव टू present ourselves or surrender ourselves in His presence. Then He will reveal, He will show me the mirror, He will speak to me. वो मुझसे बातें करेगा, वो मुझे आईना दिखाएगा, मुझे अपने आप को दिखाएगा। ये तीसरा तरीका। चौथा तरीका इस तरह है कि हम परमेश्वर की आत्मा के सुनने वाले होने चाहिए। We have to listen to Spirit. हम अपने आप को इस तरह तैयार करें कि परमेश्वर की हम सुने। हम परमेश्वर की आत्मा कैसे सुन सकते हैं? एक, परमेश्वर के वचनों के जरिए या वचनों में से हम सुनते हैं, हम समझ सकते हैं, सुनते हैं। ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಬಹಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇ ಬಿ 2 verse 3 verse या 5 verse, try to meditate on those words. Then you will try to understand, और परमेश्वर तुम्हें उसकी समझ देगा उन वचनों का, और तुम समझ पाओगे कि परमेश्वर उन वचनों के ज़रिए तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हारा हृदय से वो क्या बात कर रहा है। अब तब उन वचनों को जब आप पढ़ोगे, अपने आप को उन वचनों में डालकर महसूस करना। मान लीजिए कि अगर कोई पैराबल या स्टोरी पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, तो उस कहानी में
अपने आप को एक पात्र बनाकर डालिए और प्रयत्न करें समझने का कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का लोगों का जो बातें हैं और वहाँ का माहौल जिस तरह है, उन विषयों को जब आप समझने की प्रयत्न करेंगे अपने आप को डालकर, तो आप परमेश्वर के वचनों के ज़रिए आपके लिए संदेश पाओगे, आपके लिए आप उसकी बातों को समझ पाओगे। और उन पढ़े हुए शब्दों में या वाक्यों में यदि कोई वचन या कोई एक सेंटेंस अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वचन मेरे लिए या कुछ तो कह रहा है, उस वचन को या उस शब्द को आप बार बार पढ़ें, उसको समझने का प्रयत्न करें, परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें, तब आपको उन या उस बात से या उन वचनों से आपको परमेश्वर बात करेगा। दूसरा, अगर परमेश्वर की आत्मा का सुनना है तो दूसरा इस तरह है कि परमेश्वर अपने जो हस्तकला है या परमेश्वर निसर्ग के जरिए हमसे बात करता है। God speaks to us through His world, उसके क्रिएशन से, उसके रचना से वो हमसे बात करता है। भजन संहिताकार 19वें अध्याय में पहला वचन इस तरह कहता है, Psalm 19:1, it says, "The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork." प्रियो, कुछ साल पहले मैं बहुत ही उलझनों में, बहुत अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा था, क्योंकि मैं पास्टर हूँ। मैं अगर मेरी समस्याओं को किसी को बताना भी चाहा या मैं मेरी बातों को किसी को बोलना भी चाहा, तो लोग उतने गंभीरता से नहीं लेंगे, या इस तरह कहिए कि एक पासबान के लिए कोई कान देता नहीं सुनने, मुश्किल से कोई एक आध मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज। और ऐसे समस्याओं में जब मैं कुछ समस्या में उलझा हुआ था और मैं खोज रहा था उत्तर को, तब मैं ऐसे ही बस रास्ते में एक ऐसे देखा, एक पेड़ की पत्ता, बड़ा पत्ता, वो पत्ता ऐसे लगा मैं उसे उठाया, और उस पत्ते को मैं जब निहार रहा था, देख रहा था, उसमें जिस तरह सुंदर रीति से उसका डिज़ाइन है पत्ते का, जिस तरह उसके अंदर जो छोटे छोटे लाइंस है, और ऐसा वो एक जिस डाली से जुड़ा होगा वहाँ पर उसका पीछे एक छोटा सा कनेक्टिंग, ये सारा चीज़ों को जब इस पत्ते का वर्णन जब मैं अपने आप कर रहा था या देख रहा था, समझ रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा। वो पत्ता जो नीचे गिरा हुआ था, उसे देखकर मुझे इस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि वाह, परमेश्वर की कितना सुंदर रचना है। और उसे देखकर मैं बस ऐसे ही सोच ही रहा था, अचानक मुझे परमेश्वर की उस निसर्ग का या परमेश्वर की हस्तकला का उस पत्ते से मेरा समस्या का समाधान मिला। मुझे एक खुशी महसूस हुआ और मैं जान गया कि परमेश्वर इस तरह कहता है कि जो चीज़ टूटकर डाली से नीचे गिर गया, जिसका कोई मायना नहीं है, वो भी मैं इतना सुंदर रीति से उसे रचा, इतना सुंदर रीति से बनाया हूँ कि उसका आकार, उसका रंग, उसके अंदर एक एक लाइंस, एक एक रेशा, ये सारी चीज़ें निहारने लायक है, ये सुंदर है।
उससे परमेश्वर मुझे ये कहा कि देख, जब मैं इस चीज़ को जिसका मायना नहीं है उसे इतना सुंदर बना सकता हूँ या उसे इतना खूबसूरत मैं बना सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो तेरे जीवन को क्या मैं सुंदर नहीं रख पाऊँगा? क्या तेरे जीवन को इस समस्याओं से मैं सुलझा नहीं पाऊँगा? मैं इन बातों को समझ गया और बहुत ही खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद किया। और जैसे जैसे दिन बीत गए, परमेश्वर ने समस्याओं से समाधान मुझे प्रदान किया। वो खुद समस्याओं में उतरकर, मेरी समस्या में उतरकर समाधान किया। चौथी बात है, हम परमेश्वर की आराधना से उसको सुन सकते हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, करते समय जब हम उसकी गीतों को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, कुछ कुछ गीतों से आप महसूस करें कि आपकी आत्मा प्रज्वलित हो रही है। यू विल फील दैट योर स्पिरिट इज रिवाइविंग। उस समय जान लीजिए कि प्रभु उसकी आराधना में या उसकी आराधना से हमसे बातें करता है, हमसे बातें कर रहा है, या उस गीत का वो शब्द वो मुझे परमेश्वर की ओर से मिला हुआ या मिल रहा है या मिला हुआ एक वचन है, ये हम समझ सकते हैं। एक व्यक्ति था जो बहुत ही एक मरने के डेथ बेड पे था, और वो एक बार एक पास्टर से पूछता है कि पास्टर साहब, मुझे दिक्कत हो रहा है परमेश्वर से संबंध स्थापित करने में। इतने साल में मेरे जीवन का परमेश्वर से कभी मैं संबंध स्थापित नहीं कर पाया पूर्ण रीति से। बस एक नामधारी ईसाई था, लेकिन परमेश्वर को जानता नहीं था। आज मैं ये स्थिति में हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर को जानूँ। किस तरह मैं परमेश्वर को जान पाऊँगा? तब पासबान कहता है कि देख, अगर तुझे परमेश्वर से संबंध स्थापना करना है, बातें करना है, तो तू तेरे बेड के बाजू में एक कुर्सी रख और उस कुर्सी को देख और ये महसूस कर कि उस कुर्सी पर परम प्रधान परमेश्वर विराजमान है, और तू उससे उस खाली कुर्सी की तरफ तो देख कर तो महसूस कर कि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है, और तू बातें कर। परमेश्वर तेरी बातों को सुनेगा। और ऐसे ही वो कुछ दिनों तक ऐसे ही कर रहा था। हम लोगों को या देखने वालों को ऐसा लगता होगा कि वो पागल है, काली कुर्सी की तरफ देखकर वो बातें करता था। लेकिन एक रात अचानक वो मर गया। जब सवेरे उसकी बेटी आकर देखती है, उसके पिताजी के बेड की बाजू में वो चेयर है, और उसका पिताजी उस चेयर में अपने हाथ को फंसाकर उस चेयर की तरफ देखते हुए या उसकी तरफ, चेयर की तरफ अपनी शक्ल, अपने मुंह को किए हुए पड़ा है। तो इससे ये अंदाजा होता है कि वो व्यक्ति प्रार्थना करते करते प्रभु के साथ अपना संबंध स्थापित करते हुए वो परमेश्वर के पास निकल गया। प्रियो, परमेश्वर भिन्न भिन्न ರೀತಿ से ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾನ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಆತನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ಆತನ ನಿಸರ್ಗದಿಂದಾಗಲಿ, ಆತನ ಆತ್ಮದಿಂದಾಗಲಿ ನಾವು ಆತನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ನಾವು ಆತನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಮತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಚರ್ಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕೂಡಿಸಿರುವಂಥ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು, ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ: ಗಾಡ್ವಿನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಸೊಲೊಮನ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ದಿನ. 6th ಸುಗನ ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಟೇಕರ್. 7th ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. 8th ಶೈಲಾ ಸೈಮನ್ ದಲ್ಬಂಜನ್. 9th ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ. 7th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಆನಂದ್ ದಲ್ಬಂಜನ್. 8th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅರವಟಗಿ. ಅಗೇನ್ 8th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಥಾನೆಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಕಣ್ಣನ್. ಇವರ ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಮತ್ತು ಇವರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಇದೆ. ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದನ್ನು ದೇವರು ಈ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಈಗ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಿಯವಾದವರಿಗೆ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಸನೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. प्रार्थना करना। परम प्रधान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय हम इन प्रियजनों को जो अपने जन्मदिन इस सप्ताह में मना रहे हैं, इन सारे लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। विनती करते हैं प्रभु कि इनके ऊपर आपके अनुग्रह होने दे और इन्हें आप सुरक्षित रखें, इन्हें संभाल कर रखें और इनके जीवन में उत्तम कार्य को आप करते रहें। गॉडविन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। सुगुना प्रीतम नाटेकर, क्रिस्टिन हिरेकेरूर, शैला साइमन दलबंजन, पुरुषोत्तम, इन सारे लोगों को पिता आप आशीषित करें। इनके जीवन में एक नया जोश, एक नया आनंद आप प्रदान करते हुए इन प्रियजनों को आप ही आपकी प्रसन्नता से आपकी अगुवाई करें, ताकि ये प्रियजन आप ही में संतुष्टि का जीवन पाते हुए रह सकें। अंधकार के बंधनों से, शैतानी ताकतों से, बीमारियों से और इस वायरस से इन प्रियजनों को बचाए रखें और इन्हें इनके साथ आप रहकर इन्हें चलाएं। उसी तरह प्रार्थना करते हैं इन प्रियजनों के लिए जो अपनी शादी की सालगिरह इस सप्ताह में मना रहे हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं मिसेस एंड मिस्टर सुनील आनंद दलवंजन, मिसेस एंड मिस्टर आनंद अरवतगी, मिसेस एंड मिस्टर नथानेल देवराज कन्नन, इन प्रियजनों को आप आशीषित करें, इनके परिवारों को आशीषित करें। पिता, इनको आपने सालों पहले जोड़ा है, पिता होने दे इनका परिवार आप में संतुष्टि का जीवन पाएँ। हर एक उतार चढ़ाव में ये परिवार न बिखरते हुए एक दूसरे के साथ ये लोग हमेशा चिपके रहें और परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवनों में होते हुए देखें और उसके इच्छा अनुसार अपने जीवनों को, अपने पारिवारिक जीवनों को व्यतीत कर पाएँ। ऐसे अनुग्रह करें। इन परिवारों को पिता आप आशीषित करें, इनके बच्चों को आशीषित करें। उसी तरह प्रार्थना करते हैं विशेषकर पिता उन प्रियजनों के लिए, हमारे कलीसिया के उन लोगों के लिए जो बीमार अवस्था में है, कमज़ोरी की हालत में है, जिनको आपकी गायलातों का स्पर्श की आवश्यकता है। पिता, इन्हें चूले संपूर्ण चंगाई प्रदान करें और इनको आत्मिक बल प्रदान करें। और पिता, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं इस वायरस के लिए। पिता, यीशु के नाम में इस कोरोना वायरस को इस पृथ्वी से आप हटा दे, निकाल दें। पिता, इसके डर के माहौल में आपकी हस्तकला, सारा मानव जाति घबरा गया है, डर गया है। बहुत सारे लोग अपनी जान को भी गंवाए हैं। पिता, विनती करते हैं प्रभु, आपकी हस्तकला, आपकी रचना, हम मनुष्य आपके प्रियजन, पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं कि हम सारे लोगों को आप सुरक्षित रखें। पिता, इस कोरोना वायरस को इस पृथ्वी से निकाल दे और हर एक व्यक्ति को ये महसूस करा, ये एहसास दिला कि परम प्रधान परमेश्वर वो अपने अधिकार में हर चीज़ को रखा है। वो इस पृथ्वी का राजा है, इस ब्रह्मांड का वो महाराजा है। ये एहसास हम सभी को होने दे पिता।
पिता, इस बीमारी से हम सारे लोगों को बचा, हम सारे लोगों को पिता आपकी सुरक्षा कवच ओढ़े, ताकि हम सारे लोग आप ही में जीवन पाते हुए संतुष्ट रह सकें। फिर एक बार पिता, इन प्रियजनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी दान वे इस समय इकट्ठा किए हैं, उस दान को आप आशीर्वाद करें, उसे बढ़ाएं, आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करें। उसी तरह इन प्रियजनों के जीवनों में और अधिक आसमानी आशीषों को उंडेलें, ताकि ये प्रियजन आप में संतुष्ट रह सकें। धन्यवाद करते हुए हम सारे लोगों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सारे लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇನ್.